continuity for the same, that is lesson 5, snapshots, Mother's Day. So it's our lecture number 2 as this chapter is concerned. Be enthusiastic to look at the things. So already told in a previous lecture that this particular chapter is a star on the British families where mothers are taken for granted and not treated with respect the way they should be. So I think you are crystal clear about the first point बेटे मैंने कल बताया था वो था कि ये जो ड्रामेटिक सीन है जो ये ह्यूमरस प्ले है ये बेसिक क्या है ये क्रिटिसिज्म है आयरनी है किस पॉइंट की आयरनी है कि ब्रिटिश फैमिलीज में मदर्स को कैसे डील किया जाता है मदर्स को रिस्पेक्ट लेवल क्या होता है यानी कि उनको जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए नहीं मिलती क्यों उनका कल्चर ऐसा आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड डियर स्टूडेंट देयर इज अ लॉट ऑफ difference between the culture of India and culture of other foreign countries. So before starting today's assignments, we must salute India's culture and we must respect India's culture. So we must not run for westernization. I think this is the basic life skill we are able to learn. We look at the micro introduction and introduction of this particular chapter. This particular point is crystal clear. I think you must have noted down. There is no doubt so far as this particular point is concerned. I think you are clear about J.B. Priestley. I have already told you that we are able to look at this particular writer as a playwright here. Already interpreted what is playwright. Who is playwright? I think you are able to understand the concept. But a concept ki study karna, don't cram. I think you are crystal clear up to this particular point. There is no doubt. Now, just look at the characters. You have just studied 5 characters of this particular play. Actually, this is a humorous play, family drama. Family drama mein family of Mrs. Pearson is there. Mrs. Pearson, her husband, her 2 children. And one more main character in this particular play is Mrs. Fitzgerald. She is the neighbor of Mrs. Pearson. वो पड़ोस में रहती है मिसेस पियर्सन की आई थिंक सेटिंग एंड सीन एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर so far as this particular lesson is concerned there is no doubt for that so we have to look at the opening point we have to look at the beginning of this particular play in a very sincere way so dear students before starting today's assignments it's your moral responsibility to keep your pencils and registers with you. तो ये जो chapter है, I will not do line by line. I will be able to look at the base of this particular chapter. I will be able to look at the overview of this play in a very detailed way. So consider it your moral responsibility to note down each and every point, dear students. I think micro introduction and introduction is clear. The beginning. Mrs. Fitzgerald and Mrs. Pearson. Just meeting of these 2 ladies we are able to look at. हम जो पहला जो ओपनिंग देखेंगे इस प्ले में वो क्या होगा ऑलरेडी कल हमने उसको स्टडी भी कर लिया था कि जो मिसेस फिट्जरल्ड है वो मिसेस पियर्सन के घर में आई हुई है और वो उनके लिविंग रूम में बैठी है और मैंने लिविंग रूम कल बताया था ना बेटा होता है ड्राइंग रूम तो दोनों डिस्कशन कर रही हैं तो डिस्कशन यू विल बी एबल टू लुक एट कि Mrs. Fitzgerald was able to judge that particular point that Mrs. Pearson is quite unhappy to look at the attitude of her family members. She just wants her to upgrade the things, improve the things. I think there is no doubt so far as things are concerned.
तो ये मिसेस फिट्जगेराल्ड की इंट्रोडक्शन मैंने कल दिया था. शी इज फॉर्चून टेलर. फॉर्चून टेलर क्या होते हैं? जो कि यानी कि टैरो कार्ड रीडर होते हैं. वो बताते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, पास्ट की क्या स्टेटस था और प्रेजेंट का क्या स्टेटस है. तो आई थिंक जो एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं तो वो उसका एक्सपीरियंस था, उसने उसकी ट्रेनिंग ली हुई थी और साथ में मैजिक भी जानती थी. वो जादू जुदू होता है ना, शी वाज इन द नॉलेज ऑफ दैट. Now just look at the things in detail, start noting down. I'm just able to look at each and every point in detailed way, overview of this particular play. Just start writing and start listening. A very systematic way. So now I'm just introducing Mrs. Pearson again. So if we look at the character traits of this particular lady, the pleasant looking women. Pleasant looking होते हैं तो जो कि यानी कि हेल एंड हर्टी फेलो होता है. जो कि हेल एंड हर्टी होता है कि जो कि ऐसा नहीं लगता कि इरिटेशन में कभी आएगा. जिसको कहते हैं ना द पर्सन विथ एमिएबल टेम्परामेंट. तो उसको प्लेजेंट लुकिंग, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट. शी इज अ टिपिकल हाउसवाइफ. लुक एट द सेकंड मेन पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेडी. तो ये बेटा शी वाज टिपिकल हाउसवाइफ. टिपिकल हाउसवाइफ क्या कहता है? Women solely devoted to her family assignments. And I think you are able to look at this particular concept or word housewife. There's no doubt in this. Now look at the third character trait of this particular woman. She's fond of her family. Fond of is a phrase you will have to look. तो बेटे fond of phrase का क्या मतलब होता है? Write down the meaning. Crazy about something. जिसको चाहता है दिल और जान से. तो ये जो विमेन है अपनी फैमिली को बहुत दिल और जान से चाहती है. ऐसे तो हर विमेन का रिस्पेक्ट लेवल होता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा है. अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाओ, पेरेंट्स आर नॉट डेडिकेटेड. रीजन बिहाइंड दैट इज चिल्ड्रन आर नॉट dedicated or respectful. They never give respect to their parents. So I have already told you people that respect begets respect. And one more quotation you will be able to listen here. Hatred begets hatred. ये भी याद रखना. जब हम एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं ना, उसका ऑपोजिट कॉन्सेप्ट हमें जज करना खुद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. तो फॉरेन कंट्रीज के कल्चर के कारण वहां बच्चे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते और पेरेंट्स बच्चों की नहीं करते. तो कल्चर है. इंडिया का कल्चर दैट इज वेरी डिफरेंट. और ये चैप्टर बिलोंग्स टू फॉरेन कंट्री, ऑलरेडी टोल्ड. तो यहाँ पे ये हाईलाइट किया गया है इस पॉइंट का. मैं कैरेक्टर ट्रेट्स बता रही हूँ मिसेस पियर्सन के. शी इज फॉन्ड ऑफ हर फैमिली. फैमिली को दिल और जान से चाहती है. एंड शी इज solely devoted for her family. और कुछ उनको असाइनमेंट की यानी कि कोई परवाह नहीं है. सिर्फ उनको है कि मेरी फैमिली जो है अच्छे तरीके से यानी कि चले, अच्छी डाइट ले, अच्छे यानी कि एनवायरनमेंट में रहे. सो शी इज solely dedicated for that particular point. Now look at the next character trait of this particular lady, that is Mrs. Pearson. You have to look at she speaks softly. जो उनका वे ऑफ स्पीकिंग इज वेरी सॉफ्ट. But due to the environment of her family, or due to the attitude of her family, due to the environment of her house, she is not able to speak in that particular tone. थोड़ी सी agitation होती है उनके tone में. And if we look at this particular point, we are crystal clear कि वो soft spoken तो है, but due to her irritation, she look everything in I think critical order. उसमें वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फैमिली मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल है. इन्वायरमेंट जो फैमिली का बना हुआ है वो रिस्पॉन्सिबल है. आई थिंक crystal clear so far as the
basic character traits of Mrs. Pearson are concerned. There is no doubt. यानी कि जो मेन कैरेक्टर है यहाँ पे, we are able to look at this particular point in a very sincere way. कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है, you are able to attempt immediately. अगर आता है right character sketch of Mrs. Pearson, you are able to look at the question in a very easy way and you are able to answer it quickly. Look at the next. It is second episode. अगर हम सेकेंड एपिसोड देखें नटशेल में इस प्ले का, तो हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वी हैव टू लुक एट द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ मिसेस फिट्जगेराल्ड. जस्ट लुक एट. तो मिसेस फिट्जगेराल्ड इज ओल्डर, heavier and strong personality. Yesterday you had studied up to that particular point. वो एज में बड़ी है मिसेस पियर्सन से, और वो जो उसका जो फिजिक है थोड़ा हैवी है, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड पर्सनालिटी है, एंड हर वे ऑफ स्पीकिंग इज वेरी हार्श. स्ट्रांगली बोलती है बिकॉज शी इज अ बोल्ड लेडी. और जो उसकी जो एक्सेंट है दैट इज आयरिश एक्सेंट. Yesterday I told you the accent of both the women, that is Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald. तो जो मिसेस पियर्सन का एक्सेंट है बड़ी सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन उनके जो एक्सेंट में क्या है, कोकनी. कोकनी मैंने बताया था कि ईस्ट लंदन में ये जो एक्सेंट है वो जो है यानी हाईलाइट किया जाता है. यू आर एबल टू लुक एट दिस. तो further just look at this Fitzgerald's character traits. A few more character traits of Mrs. Fitzgerald's. So she knows about fortune telling. She is with a knowledge of fortune telling and magic. यानी टैरोट कार्ड रीडर है वो यानी एस्ट्रोलॉजी जानती है. यानी टैरोट कार्ड रीड क्यों किया जाता है, कल मैंने बताया था बेटा. वो किया जाता है कि हम अगर इफ वी वांट टू पीप डीप इनटू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ऑफ एनीबॉडी, कार्ड की रीडिंग से यानी जिनको भी ये नॉलेज होती है, इसकी एडुकेशन होती है, इसका एक्सपीरियंस होता है, तो वो हाईलाइट कर सकता है कि व्हाट विल बी आवर फ्यूचर, what was our past and what is our present. I think this concept is crystal clear, and about Mrs. Fitzgerald are crystal clear. जो नटशेल में मैंने बताए हैं ब्रीफ पॉइंट मिसेस फिट्जगेराल्ड के बारे में, जो कि नेबर है मिसेस पियर्सन की. यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस and you are able to attempt the answer immediately if question about Mrs. Fitzgerald will be there in your paper. Now look at the third episode. Third episode of this particular lesson, you will be able to look at in a very sincere way. So, we're going to study about Mrs. Pearson's problem and Mrs. Fitzgerald's advice. Note it down. थर्ड एपिसोड में हम क्या करने जा रहे हैं, मिसेस पियर्सन की प्रॉब्लम और मिसेस फिट्जगेराल्ड की एडवाइस. Already told you the problem of Mrs. Pearson. She was unhappy to look at the attitude of her family members. तो अब हम डिटेल में we will be able to discuss. We are able to look at the overview of this particular episode कि रियल में ये एपिसोड है क्या. तो बेटा be ready to write, and before writing listen properly. Just look at Mrs. Pearson's problem and Mrs. Fitzgerald's advice. You will be able to look at that thing. Already you are able to observe this particular scene that both the ladies are sitting together. दोनों की मीटिंग हो रही है. मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जगेराल्ड के घर नहीं गई हुई, मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है मिसेस पियर्सन के घर में आई हुई है. I think there is no doubt so far as the basic point is concerned. So you will be able to look at the next step.
Now she means Mrs. Pearson is telling her problem to Mrs. Fitzgerald. इस स्टेज पे थर्ड एपिसोड जो मैं बेटे इसको बता रही हूँ, ओवरव्यू बता रही हूँ इस पूरे प्ले का, उसमें यू विल बी एबल टू लुक एट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. I think visit, you are crystal clear ki who visited whom. You are able to understand this particular point. And the next step, you will have to look it very sincerely. Mrs. Pearson is excessively fond of her family. कहते ना कि excess of anything is bad. So I think you are able to recognize this fact. लेकिन मैंने तब excessively word जो है add नहीं किया था. It is newly added word. So far as micro introduction or introduction of this chapter is concerned, not told you this particular point that she is excessively fond of her family. और एक और point, तो इसका क्या एक्शन हो रहा है जो excessive word है इसका? यानी already told you that excess of anything is bad. So she runs after her family members all the time. सारा दिन उनकी सर्विस करती रहती है. तुमने ये खा लिया, तुमने पी लिया, कहाँ जा रहे हो, क्या खाना है, जूस पीना है, चाय पीनी है, मिल्क पीना है. But I think she is just spending all her time to look at or to look after her family's needs. In a very sincere way. क्यों? क्योंकि आउटकम किस चीज का है? Because she is excessively fond of her family. And she takes their orders all the time. सारा दिन अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के जो भी वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं फॉलो करती है लॉयल्टी से, सिंसेरिटी से, ऑनेस्टी से. अपने बारे में नहीं सोचती. Not a very negative point so far as this particular play is concerned. You should write down this particular point. तो यहाँ जो थर्ड एपिसोड में बेटे इसको नटशेल में दोबारा बता रही हूँ. You're able to look at the problem, Mrs. Pearson, and I think look at the pinpoints of the problem. She's excessively fond of her family. She runs after them all the time, and she takes their orders all the time. यानी कि अपने लिए उनके पास एक सेकंड भी नहीं होता कि अपनी तरफ अपना ध्यान दें, अपने आप को लुक आफ्टर करें. शी इज नॉट एबल टू लुक एट. सो आई थिंक यू आर एबल टू लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. एक और जो पॉइंट है इसमें ऐड कीजिए बेटे. सो शी स्टेज एट होम एवरी नाइट व्हाइल हर फैमिली मेंबर्स आर जस्ट ज्वाइनिंग parties, celebrations every day. Every night, not every day. We look at the foreign culture, they just look at or organize personal, private parties or official parties frequently. तो उनको तो स्टे होता ही नहीं घर में उसके फैमिली मेंबर्स का. कभी किसी क्लब में जा रहे हैं, कभी किसी पार्टी पे जा रहे हैं, कभी किसी सेलिब्रेशन पे जा रहे हैं, पर ये लेडी, ये विमेन, ये घर में ही रहती है, कहीं नहीं जाती बेचारी. No, she's ever busy to look at the next day's assignment. कि कल मेरे जो family members हैं उनके assignment को मैं पूरा करूं. She's very dedicated and sincere. I think there is no doubt so far as third episode of this particular play is concerned. You are able to look at the overview of third episode of this particular play. तो ये problem बन चुकी है उसकी. कहते हैं ना कि अगर कुछ limit क्रॉस हो जाती है किसी चीज की, वो प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी हो. इट कैन बी एनी. तो अब इस प्रॉब्लम को फिर से वो शेयर किया होगा उसने कभी जरूर. एक बार होता ना कि हम अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से अपनी जो प्रॉब्लम होती है कई बार शेयर कर लेते हैं. तो वैसे करनी नहीं चाहिए. यहाँ मैं लाइफ स्किल बताती हूँ. तो बेटा while you weep, you will have to weep alone. While you laugh, everybody will laugh with you. तो अपनी प्रॉब्लम अपने पास ही रखनी चाहिए.
पर यहाँ पे हो सकता है कि मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जजेराल्ड को अपनी ट्रू फ्रेंड मानती हो, तो आप शेयर कर सकते हैं जो हमारी ट्रू फ्रेंड। अगर हमारे कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है, फिक्टिशियस फ्रेंड्स हैं, क्योंकि ट्रू फ्रेंड सर्च आउट करना बहुत मुश्किल होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जिंदगी लग जाती है बट वी आर नॉट एबल टू सर्च आउट ट्रू फ्रेंड। और एक कोटेशन और भी यहाँ पे याद रखना बच्चों, अ फ्रेंड ऑफ ऑल इज अ फ्रेंड ऑफ नन, बेटर अलोन देन अ बैड कंपनी। बुरी संगत से या डिसऑनेस्ट संगति से अकेले ज्यादा अच्छा होता है बेटा। और अपनी डायरी को अपना फ्रेंड बना सकते हैं। आई थिंक यू हैव स्टडीड इन स्टैंडर्ड 10, यू मस्ट हैव स्टडीड एनीज डायरी। उसकी भी बहुत फ्रेंड्स थी, लेकिन ट्रू फ्रेंड वो किसी को नहीं मानती थी। जब भी हम कोई पर्सनल अपना शेयर करते हैं, जब तक हमें क्लैरिटी ना हो जाए कि ये इंसान जो है ट्रू है, ऑनेस्ट है, जेन्युइनली, तो इससे अच्छा अपने पास ही रखो अपनी बात। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये लाइफ स्किल आपने नोट कर ली होगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे यानी मैं कह सकती हूँ इस पॉइंट को, यहाँ यू आर एबल टू जज दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट मिसेस पियर्सन might have shared her problem with Mrs. Fitzgerald, जो की नेबर थी। अब क्या, just look at the idea of Mrs. Fitzgerald। अब उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मिसेस फिट्जजेराल्ड क्या आइडिया देते हैं। You will have to look at the 4th episode of this particular play. It's a humorous play, but it is full of number of life skills. तो जो एडुकेशन है बेटा, ये कॉन्सेप्ट्स और लाइफ स्किल्स है। अगर हमने ये लर्न नहीं किया, देयर इज नो यूज ऑफ लर्निंग चैप्टर्स। या फिर वोकैबुलरी है, या फिर सेंटेंस पैटर्न है, या ग्रामेटिकल पोर्शन है, वी आर एबल टू जज एवरी पॉइंट। लेकिन जो बेस होता है टेक्स्ट पढ़ने का, लिटरेचर पढ़ने का, वो है कि वो यू विल बी एबल टू लुक एट बेसिक कॉन्सेप्ट्स, लाइफ स्किल्स, मॉरल्स, देन ओनली वी बी एबल टू लुक एट दैट वी आर एडुकेटेड पर्सनैलिटीज। Otherwise wastage of time and energy. Let's look at the 4th episode of this particular play. तो यहाँ पे you will be able to look at that Mrs. Fitzgerald gives the idea. So look at the idea. क्योंकि उस प्रॉब्लम को, मिसेस पियर्सन की प्रॉब्लम को समझते हुए, रिकॉग्नाइज करते हुए, मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है वो हाईलाइट करते हैं। किस पॉइंट को हाईलाइट करते हैं? शुड बी एबल टू लुक एट, शी gives an idea दिया उन्होंने। She had given the idea that we must look at the base to sort out this particular problem. कहते हैं जड़ से इस प्रॉब्लम को खत्म करते हैं मिसेस पियर्सन। उसके लिए एक ही टैक्टिक्स है, एक ही टैक्टिक है, एक ही रास्ता है कि we must convert personalities। यहाँ पे मिसेस फिट्जजेराल्ड कहते हैं कि हम एक ही आइडिया है कि कुछ देर के लिए, परमानेंटली नहीं। She wanted to highlight that particular point. She means Mrs. Fitzgerald. Hey, Mrs. Pearson, if you want to sort out this particular problem, एक एक्शन लेना पड़ेगा। क्या एक्शन लेना पड़ेगा? कि मैं मैजिकल पावर से कन्वर्शन करती हूँ, यानी कि कुछ देर के लिए मैं तुम बन जाती हूँ, तुम मैं बन जाऊं, यानी कि फिजिकल आउटलुक वही रहेगी, कल भी मैंने बताया था। पर जो बेसिक्स हैं, यानी जो सोल्स हैं, वो चेंज हो जाएगी। तो उसके एक्शंस एंड रिएक्शंस हैं, किस पे आ जाएंगे? मिसेस पियर्सन पे। और जो मिसेस पियर्सन के एक्शंस एंड रिएक्शंस हैं, वो मिसेस फिट्जजेराल्ड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ कंसेंट ले रहे हैं 3rd एपिसोड में मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन से। कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम तभी सॉर्ट आउट हो सकती है मिसेस पियर्सन, अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। स्ट्रिक्ट एक्शन कैसे? कहते हैं कि मैजिकल पावर से मैं क्या करती हूँ, कुछ देर के लिए हम कन्वर्जन कर लेते हैं, किसका? पर्सनैलिटीज का। आप मैं बन जाओ, मैं आप बन जाऊं, यानी कि वो इस वे से क्या होगा, मिसेस पियर्सन विल बी स्ट्रॉन्ग, यानी
कि जो भी वो उसके उनके अगले एक्शन होंगे बड़े स्ट्रांग होंगे, कि जो उनकी उनकी जो एक्शंस एंड रिएक्शंस है मैजिकल पावर से मिसेस फिट्जगेराल्ड के उनमें आ जाएंगे और मिसेस फिट्जगेराल्ड के मिसेस पियर्सन में चले जाएंगे, और मिसेस Fitzgerald will be a very soft spoken lady and Mrs. Pearson will be very strong lady after conversion, यानी कि मैजिकल पावर से, कैसे मैजिकल पावर से, मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है वो मैजिक जानती थी, उसको आता था मंत्र मंत्र जो भी होता है, whatever it is. I think you are able to look at this particular episode. अब उसके कहती है कि यार एक बात बता, रेडी है तो इसके लिए, मैं तो 1 मिनट में एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ. I think there is no doubt so far as this particular episode of this particular play is concerned. वो आइडिया शेयर करती है और साथ में कंसेंट चाह रही है, परमिशन मांग रही है मिसेस पियर्सन से कि अगर आप एग्री हो तो मैं ये एक्शन लूं. मैं मतलब दोनों के लेना पड़ेगा कुछ देर के लिए. दोनों कहती है कि मैं अपनी मैजिकल पावर से अपने जो भी मेरे को आता है ये मैजिक मैं पर्सनैलिटीज चेंज कर देती हूँ कि आप कुछ टाइम के लिए मैं बन जाऊं, मैं आप बन जाऊं. यानी फिजिकल आउटलुक नहीं चेंज होगी. मैं तुम्हें क्लियर बता दूं, कहीं कंफ्यूज हो जाना इस पॉइंट को लेके. नेवर, सिर्फ एक्शंस एंड रिएक्शंस. लेसन देने के लिए हार्श होना पड़ना था किसको, मिसेस पियर्सन को. बाय दिस वे, बाय just looking at this particular action with the conversion of personalities, automatically Mrs. Pearson would be able to look at very harsh actions and reactions with our family members. And on the other hand, Mrs. Fitzgerald will be very soft spoken and very, I think, decent women. तो उसमें कन्वर्शन आ जाएगा. उनके गुण उनमें आ जाने थे जादू से और उनके गुण उनमें, यानी परमानेंटली नहीं, कुछ टाइम के लिए. आई थिंक देयर इज नो डाउट. अब इस पॉइंट पे एक डेडिकेटेड विमेन जो होती है अपनी फैमिली के लिए, जो होली सोली डिवोटेड होती है, उसको लगता है नहीं कष्ट नहीं देना अपनी फैमिली ना. तो उनके लिए पूजा होती है, वर्शिप होती है उनकी फैमिली. वो ये नहीं देखते कि वो उनको यानी कि कितना रिस्पेक्ट मिल रहा है, कितना पॉजिटिविटी मिल रहा है फैमिली मेंबर्स. तो यहाँ पे यू विल बी एबल टू लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन वेरी डिफरेंट वे. मिसेस पियर्सन हेजिटेट्स. यहाँ पे हेजिटेशन शो करती है. उसको लगता है कि नहीं मेरी फैमिली दुखी होगी. तो और वो मानती नहीं है पहले, और फिर ज्यादा समझाती है मिसेस फिट्जगेराल्ड एंड शी वाज एबल टू एग्री दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, यानी अल्टीमेटली मिसेस पियर्सन gives consent to Mrs. Fitzgerald for conversion of personalities by using magical powers. I think 4th episode it is crystal clear, there is no doubt. And just you are writing every point simultaneously. Just look at the next 5th episode of this particular play, humorous play. अब आई थिंक कंसेंट दे दिया इन्होंने, मिसेस पियर्सन ने मिसेस फिट्जगेराल्ड को कि हाँ you want to look at the things for positive, do it. ना कि चेंज फॉर पॉजिटिविटी इज ऑलवेज गुड. कोई भी चेंज करते हैं, अगर कोई भी हम एक्शन लेते हैं फॉर पॉजिटिविटी, इट इज कंसिडर्ड गुड. वो कोई भी हो एक्शन. बहुत सोचती है, पहले बड़ी हेजिटेशन फील होती है मिसेस पियर्सन को. उनको लगता है कि दुखी होगी उसकी फैमिली. फिर कहती है नहीं यार मैं भी तो दुखी हो रही हूँ, हो सकता है कि चेंज आ जाए, हो सकता है कि पॉजिटिविटी आ जाए मेरे फैमिली मेंबर्स में उससे. तो वो अपना कंसेंट पॉजिटिव में दे देती है कि हाँ तू मिसेस फिट्जगेराल्ड डू इट, कि एक्शन जो लेना करो, जो भी मैजिकल पाथ यूज करके कन्वर्जन ऑफ पर्सनालिटीज करनी है कीजिए. तो आप देखिए कैसे करते हैं मिसेस फिट्जगेराल्ड. यू विल हैव टू लुक एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तो अब अगला एक्शन क्या होता है मिसेस फिट्जगेराल्ड का. क्या करती है, शी होल्ड्स मिसेस पियर्सन्स हैंड. दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ती हैं, यानी कि मिसेस फिट्जगेराल्ड होल्ड मिसेस पियर्सन्स हैंड एंड मिसेस पियर्सन holds Mrs. Fitzgerald's hand.
and asks her to be quiet. और उसको कहती है कि चुप हो जा। जब जादू करना होता है, मैजिकल पावर यूज कर रही है वहां अपनी, तो वो मंत्र होता है ना, यू विल बी एबल टू लुक एट द थिंग्स, पेज 36 पे देखिए, यू विल बी एबल टू लुक एट। तो वो अपना हाथ उनके हाथ में दे देती है और उनका हाथ यानी कि मिसेस पियर्सन का हाथ अपने हाथ में ले लेती है। साथ में इंस्ट्रक्शन देती है कि चुप हो जाओ मिसेस पियर्सन जी, अब बोलो ना, नहीं तो जादू असर नहीं करेगा, जो मैजिक है वो असर नहीं करेगा, और कुछ मत सोचोगे, तो सिर्फ यही सोचो जो जो पॉइंट है। तो उनका हाथ अपने हाथ में लेके तो साथ में क्या इंस्ट्रक्शन देती है, मेरी तरफ देख, जादू करना था ना, जादू करना कोई आसान नहीं होता, चाहे कितनी भी मैजिकल पावर्स हो। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं, दे स्टेयर एट ईच अदर। स्टेयर होता है टू लुक इंटेंटली, जब हम टिकटिकी लगा के किसी की तरफ देखते हैं। मटरिंग, मुंह में कुछ बोल रही होती है मिसेस फिट्जरैल्ड, ये जादू है जो बोल रही है, कहते हैं ना जादू मंत्र कला कलंतर होता है जब व्हाट एवर इट इज। तो मटरिंग का मतलब होता है मुंह में बोलना किसी चीज को, और जादू क्या क्या बोल रही है वो, अट शराटा डम, अट शराटा लैम, अट शराटा लैम डुबाना डैश 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 डैश। यानी कि यहाँ पे ये मंत्र पढ़ रही है कौन, मिसेस फिट्जरैल्ड, ताकि पर्सनैलिटीज में कन्वर्जन आए। I think you are crystal clear up to this particular point कि यहाँ तक जो हो चुका है एपिसोड, we are able to look at कि मंत्र पढ़ने के बाद क्या होता है। Now we have to look at, so she recites of spell, spell आपको मैंने बोल के बता दिया क्या था मंत्र का नाम। I think you are able to look at page number 36 of your NCERT book. Then just look at the conversion, हो चुका था, जादू का असर हो गया बोलने के बाद। इसके लिए इंस्ट्रक्शंस मिसेस फिट्जरैल्ड ने पहले दे दी थी कि टिक टिक सीधा मेरी तरफ देखो, वो उनकी तरफ देख रही थी, वो बड़े ऑनेस्टली मंत्र पढ़ रही थी जिससे भी कन्वर्शन होना था, और साथ में उसने इंस्ट्रक्शन दी कि चुप हो जा, बस सिर्फ यही सोच जो करने जा रहे हैं। ऑटोमेटिकली उस जादू का असर हो गया। क्या असर हुआ, अब 5th एपिसोड में हम देखते हैं क्या असर हुआ। Just look at the impact of that particular action taken by Mrs. Fitzgerald. So Mrs. Pearson becomes bold and domineering. Personalities conversion हो गया। Already मैंने बार बार कह रही हूँ, don't get confused with this particular point कि फिजिकल आउटलुक सेम था, सिर्फ एक्शंस और रिएक्शंस में उस जादू से यानी कि कन्वर्शन हुआ था। I think there is no doubt so far as this particular point is concerned. क्या हुआ आगे क्या होता है, जस्ट लुक एट। आगे हम देख रहे हैं कि अब क्या हो चुका है, जो बड़ी सॉफ्ट स्पोकन लेडी थी, बड़ी सिंसियर लॉयल लेडी थी, शी हैड बिकम बोल्ड एंड डोमिनेटिंग। जो गुण मिसेस फिट्जरैल्ड के थे उस मंत्र के बाद वो मिसेस पियर्सन में आ चुके थे। ऑन द अदर हैंड क्या हुआ था, ऑन द कॉन्ट्ररी मिसेस फिट्जरैल्ड बिकम नर्वस एंड एजिटेटेड। जो मिसेस पियर्सन के गुण थे वो मिसेस फिट्जरैल्ड में आ चुके थे। अब आगे ड्रामा देखते हैं। यहाँ तक आई थिंक एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, देयर इज नो डाउट। यानी जो मंत्र पढ़ा था मिसेस फिट्जरैल्ड ने was done effectively, तो उसका जो बेसिक इम्पैक्ट है वो आ चुका है, कन्वर्जन हो चुका है दोनों के एटीट्यूड्स में, दोनों की पर्सनैलिटीज में। तो फिर दोबारा बता रही हूँ ये पॉइंट, आप क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे मुझे पता है। ये एक थोड़े टाइम के लिए है, परमानेंट वैसे नहीं है। जैसे हम शंकर जादूगर वगैरह देखते हैं ना, कुछ देर के लिए वो असर होता है जादू का, फिर ठीक हो जाता है भाई, यू आर एबल टू लुक एट। तो उस कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्रैमिंग मत करना कि हाँ जी मैम ने पढ़ा दिया, मैंने पढ़ लिया, मेरा सिलेबस कवर हो गया। नो, सिलेबस क्या होता है जो तुम्हें आता है, तो सिलेबस भी होना चाहिए, पर सिलेबस के बाद पूछिए कि मुझे क्या आता है। मैंने ये चैप्टर पढ़ा कि मुझे कितने कॉन्सेप्ट आते हैं इस चैप्टर में, कि क्रैमिंग बेस पे अगर तुम सिलेबस कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, चाहे ये चैप्टर हो चाहे कोई भी चैप्टर हो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड माई अप्रोच एंड टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली।
अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि क्या रियल ड्रामा होता है। ऑलरेडी मैंने कह दिया ना कि मिसेस पियर्सन is bold and domineering at this particular stage, and Mrs. Fitzgerald, she is nervous and agitated. जो क्वालिटीज मिसेस पियर्सन की थी मिसेस फिट्जराल्ड में आ चुकी हैं, और जो मिसेस फिट्जराल्ड की क्वालिटीज थी वो मिसेस पियर्सन में आ चुकी है। जस्ट लुक एट द नेक्स्ट। तो कैसे एक्शन और रिएक्शंस करते हैं मिसेस पियर्सन, you will be able to look at the things. 6th एपिसोड में she is left alone, यानी वहां मिसेस फिट्जराल्ड जो रियल सेंस में होती है वो वहां से उठ के चली जाती है, अकेली बैठी होती है। वो कौन अकेले बैठी होती है? मिसेस पियर्सन। लेकिन एक्शन रिएक्शन सारे चेंज हो चुके होते हैं। अब जो काम वो करती थी, जो गुण उसमें थे मिसेस फिट्जराल्ड में, वो मिसेस पियर्सन में आ चुका। शी वाज नॉट अ स्मोकर, लेकिन इस टाइम पे शी लाइट्स अ सिगरेट, क्योंकि मिसेस फिट्जराल्ड जो थी शी यूज्ड टू स्मोक, तो यहाँ वो सिगरेट चलाती है, क्योंकि वो क्वालिटीज आ चुकी हैं उसमें, और रियल एविडेंस हमें मिल रहा है। तो अकेली यहाँ पे है, वहां पे दोनों इकट्ठी नहीं बैठी है, उसी घर में अभी भी मिसेस फिट्जराल्ड, नाउ not sitting together. So just look at the next point. So we have to look at the next episode during our next lecture only. तो हम देखेंगे कि सबसे पहले उनकी डॉटर आती है डोरिस, कैसा बिहेवियर होता है मिसेस पियर्सन का। फिर उनके बेटे आते हैं सिरिल, उनके साथ कैसा बिहेवियर, फिर दोनों में डिस्कशन। आई थिंक all the next episodes will be during our next lecture. So dear students, I hope that you are able to understand each and every point of today's lecture. In case of any doubt and any query, feel free to discuss at any moment. Don't hesitate to discuss the things. If you will not ask what, when, where, why, how, you can never ever be able to understand anything. Peep deep into your education. So with this, I'm closing this lecture. Thank you. Thanks a lot. Have a great time. Thank you.